Hello and good morning everyone. Welcome back. Last time we have studied about the periodic function, some results, some properties. In this video, we will continue that topic again. Let us first recall some. Periodic function continued. At first, we are going to recall some fact regarding periodic function and then we will continue. F is periodic implies f of x plus t equals to fx. हमने ये पढ़ा था लास्ट क्लास में कि एफ एक्स यदि पीरियोडिक है तो एफ ऑफ एक्स प्लस टी इक्वल्स टू एफ एक्स आपका होगा वेयर टी इज अ पॉजिटिव रियल कांस्टेंट एंड टी शुड बी लिस्ट। ये हमने देखा था। कुछ और प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा था जैसे कि कांस्टेंट फंक्शन इज पीरियोडिक बट फंडामेंटल पीरियड डजंट एग्जिस्ट। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पीरियोडिक such as sine, cos, cosec and sec. These are periodic with 2 pi and tan and quarter periodic with pi. Modulus of sin x, modulus of cos x and modulus of all the trigonometric functions are periodic with period pi. Now let us see one more result. What is the result? Fractional part of x has period 1. Fractional part of x has the period 1. Fundamental period is 1. We can observe this by some examples, but I will choose few. Given with fx equals to fractional part of x and this will be equals to x minus integral part of x. So what about f of x plus t? F of x plus t will be x plus t fractional part and this can be further rewritten as x plus t minus integral part of x plus t. Now in order to check whether this function is periodic or not, we will calculate f of x plus t equals to fx. So this will becomes x plus t minus x plus t integral part of x plus t. This will be equals to x minus integral part of x. We can cancel these two terms. So we are left with only these two terms. T is equals to इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस टी माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x। अब यहाँ पे देखिए LHS और RHS इक्वल कैसे होगा। LHS इक्वल टू RHS इफ एंड ओनली इफ t बिलोंग्स टू z। जब कभी भी t आपका इंटीजर में बिलोंग कर जाएगा तब जाकर के ये LHS और RHS दोनों इक्वल हो जाएंगे। आप यहाँ देख सकते हैं यदि t अगर z में बिलोंग कर गया है आपका तो t इज इक्वल्स टू इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस टी माइनस ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा विच मीन्स दैट t इक्वल्स टू t जस्ट फॉर कैलकुलेशन पर्पस ओनली। तो अब हमें पता जब चल चुका है कि LHS इक्वल्स टू RHS only when t belongs to z, so we are now going to find the least positive real number and it is integer as well. So 1 is the least positive integer and hence fractional part of x has period 1. एक तो हम लोग ये कैलकुलेशन वाइज यहाँ पे देख पा रहे हैं, ग्राफ से भी देख सकते हैं।
दिस विल बी 1 2, यहाँ से हमें दिख रहा है जो ग्राफ 0 से 1 में है सेम ग्राफ 1 से 2 में है, सेम ग्राफ 2 से 3 में है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x हैज पीरियड 1. So this is the result. Now let us move on some more properties of this. Note it down first. If fx and gx are periodic function, then fogx which means composition of function, and gofx can be periodic with period of gx or half period of gx, and period of fx or half into period of fx respectively. अभी जो हम लोगों ने यहाँ पे इतनी बड़ी चीज लिखी है उनको समझते हैं बारीकी से. Let us take an example. Suppose fx equals to sin x and gx equals to cos x. So let us calculate f of gx. F of gx will be f of gx. इसका मतलब आप gx को उठा करके f में रख रहे हैं. So this will be f of gx sin of cos x. So f of gx is equals to sin of cos x. तो जब कभी भी हम लोग f of gx का पीरियड देख रहे होंगे तो हम लोग इनसाइड वाले को सिर्फ ऑब्जर्व करेंगे, या तो उसका जो पीरियड है वो होगा या फिर उसका हाफ होगा, और ये हम लोग चेक करके बता पाएंगे. तो ऐसा करते हैं, पहले एफ ओ जी एक्स प्लस 2 पाई करके देखते हैं. दिस विल बी अगेन एक्स प्लस, जब आप पाई कर रहे होंगे यहाँ पे तो ये कुछ ऐसा दिख जाएगा, कॉस ऑफ एक्स प्लस पाई, एंड दिस विल बी साइन ऑफ माइनस कॉस एक्स, एंड फर्दर दिस कैन बी सॉल्व्ड एज माइनस ऑफ साइन कॉस एक्स. मतलब कि ये फंक्शन का वैल्यू एक्स प्लस पाई पे सेम नहीं दे रहा है, यानी कि एफ ओ जी एक्स प्लस 2 पाई जो है वो वापस से मिल रहा हमें एफ ओ जी एक्स, लेकिन यहाँ पे नहीं मिल रहा एफ ओ जी एक्स. इसका मतलब 2 पाई इज द पीरियड, यानी कि साइन ऑफ कॉस एक्स का पीरियड वही है जो कॉस एक्स का पीरियड है. वही हमने यहाँ पे लिखा है कि एफ एक्स और जी एक्स दो फंक्शन दे रखे हैं, तो एफ ऑफ जी एक्स का पीरियड जो होगा या तो जी एक्स होगा या फिर हाफ ऑफ पीरियड ऑफ जी एक्स. सिमिलरली जी ऑफ एफ एक्स में या तो पीरियड ऑफ एफ एक्स या फिर एफ एक्स का पीरियड का हाफ होगा. एक और एग्जांपल हम लोग इस पे देखते हैं. एफ ओ जी एक्स, एफ एक्स इज कॉस एक्स, जी एक्स इज साइन एक्स. एफ ओ जी एक्स इज
cos of sin x. So let hx equals to cos of sin x. So h of x plus pi will be cos of sin pi plus x, and this can be further rewritten as cos of minus sin x, and cos x is even function, so the negative sign will be omitted here. So we can see here this will be equals to hx. तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि जैसे कि एच एक्स आपका कॉस ऑफ साइन एक्स है, एच एक्स जो कि हमारा एफ ओ जी एक्स है, तो साइन एक्स का पीरियड 2 पाई होता है, लेकिन यहाँ पर कॉस ऑफ साइन एक्स का पीरियड पाई आ रहा है। तो हमने जैसा कि थ्योरी में वहां पे देखा था कि इनसाइड जो है वो फंक्शन के इनसाइड उसका जो पीरियड होगा या तो वो होगा या फिर उसका हाफ होगा। तो यहाँ पे उसका हाफ था, साइन एक्स का पीरियड 2 पाई, बट कॉस ऑफ साइन एक्स का पीरियड 2 पाई अपॉन 2 दैट इज पाई। One more property, very important property, that if fx has period t1 and gx has period t2, then fx plus minus gx, which means that sum of the two functions and difference of the two functions, fx into gx, which means that product of two functions, and fx upon gx, quotient of two functions. In all these cases, total 4 cases, fx plus gx, fx minus gx, fx into gx, and fx upon gx has period LCM of t1 comma t2 or 1/2 times LCM of t1 comma t2। तो दो फंक्शन दे रखा हमें fx और gx, fx का पीरियड है t1 और gx का पीरियड है t2। तो f और g के बीच में जितने भी ऑपरेशन हो सकते हैं यहाँ पे, प्लस माइनस, प्रोडक्ट, कोसेंट, इन सब का पीरियड या तो t1 t2 का एलसीएम होगा या फिर उसके एलसीएम का हाफ होगा। कुछ देखते हैं इस पे हम लोग प्रॉब्लम्स। एग्जाम्पल, fx equals to mod sin x plus mod cos x. We are aware of the fact that modulus of sin x has period pi and modulus of cos x has period pi also. So LCM of pi and pi is again pi. So can we say that the period of fx is pi? No. Let us calculate first f of x plus pi. So this will become sine of pi plus x modulus plus cos of pi plus x modulus. This will again become mod sin x plus mod cos x। जैसा कि हम लोग यहाँ बात किए थे, या फिर एलसीएम ऑफ t1 t2 होगा या फिर हाफ ऑफ एलसीएम ऑफ t1 t2 होगा। तो पाई पर तो आपका ये मिल रहा, f of x plus pi is equals to fx। Now let us calculate f of x plus pi by 2. This will becomes sine of pi by 2 plus x plus cos of pi by 2 plus x
This will becomes minus of cos x and the modulus of minus of cos x will be cos x. This will becomes minus of sin x and the modulus of minus of sin x will be modulus of sin x, and this can be further rewritten as fx. तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि इस फंक्शन का पीरियड आ रहा है पाई बाय 2, जो कि एक्चुअली में हाफ ऑफ एलसीएम ऑफ t1 एंड t2 है. सो वी कैन से fx हैज पीरियड पाई अपॉन 2. जैसा कि हम लोगों ने अभी बात किया है कि एलसीएम लेना होगा t1 और t2 का, अभी जरा सीख लें कि हम लोग एलसीएम कैसे आखिर लेते हैं, हाउ टू टेक एलसीएम, और वी कैन से हाउ टू फाइंड एलसीएम. How to find LCM. The topic is how to find LCM. So there are some rules. Number 1, LCM of A by B, C by D, E by F, where A, B, C, D, E, F are नेचुरल नंबर्स. इन सब का अगर आप एलसीएम लेना चाहते हैं तो ये हो जाएगा एलसीएम ऑफ ए सी ई, यानी कि जो न्यूमरेटर में है उनका एलसीएम अपॉन HCF ऑफ बी डी एन एफ. तो यहां से हमें ये पता चल पा रहा है कि अगर 3 रेशनल नंबर दिए गए हैं, ए बाई बी इज एन रेशनल नंबर, सी बाई डी इज एन रेशनल नंबर एंड ई बाई एफ इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर, तो उसका हम लोग एलसीएम निकाल सकते हैं. नंबर 2, एलसीएम ऑफ 2 irrationals of same kind is possible. यानी कि 2 इरेशनल नंबर दिए गए हैं और वो सेम काइंड के हैं तो उनका एलसीएम पॉसिबल है. कैसे? एलसीएम ऑफ √2, 2√2 विल बी 2√2, बिकॉज ये भी एक इरेशनल नंबर है, ये भी एक इरेशनल नंबर है और दोनों सेम काइंड के हैं, √2 टाइप का, तो इसीलिए इसका एलसीएम पॉसिबल है. एलसीएम अगर हम लोग कहें √2, √3 का, नॉट डिफाइंड. यहाँ पे ये दोनों इरेशनल नंबर डिफरेंट काइंड के हैं तो इनका एलसीएम पॉसिबल नहीं होगा. वन मोर, LCM of a rational and an irrational. LCM of a rational and an irrational number is not possible. यानी कि एक रैशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर का एलसीएम जो है वो पॉसिबल नहीं होगा. ये कुछ फैक्ट है एलसीएम के बारे में जो कि आपको पीरियोडिक फंक्शन का पीरियड कैलकुलेट करने में काम आएंगे. सो आई थिंक दैट्स इट फ्रॉम दिस टॉपिक. थैंक यू.